Hello everyone, welcome in your 7th class, chapter 2 in geography, inside our earth. So today we are discussing about the second chapter of your class. In this chapter we have to be discussed about the internal part of the earth. We are not talking about the internal part but the internal layers of the earth. The earth, our homeland, is dynamic planet. It means that our Earth on which we have to believe is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside, and it always has to be lot of changes inside as well as outside. So we can say that कि जिस planet पे हम रहते हैं उसके अंदर और बाहर दोनों ही तरफ जो है बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं अर्थ के अंदर? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किस चीज़ से बनी है? सो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट the interior of the earth, that what exactly has to be earth inside. That just like an onion in this chapter, or we can say that ki we have to be compare earth with onion. I hope that you all have to be see the onion को आपको सभी ने देखा होगा कि किस तरह से उसमें layers होती हैं अलग अलग. उसी तरीके से earth में भी layers होती हैं. The earth is made up of several concentrated layers with one inside another. The figure 2.1 that has to be shown here. The uppermost layer over the earth surface is called the crust. धरती के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है जिस पे हम रहते हैं उसे हम crust कहते हैं. It is the thinnest of the all layers. ये सबसे मोटी लेयर मानी जाती है, पतली लेयर मानी जाती है. thinnest means तो सबसे पतली है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर और ये करीबन 35 किलोमीटर तक पाई जाती है ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. और अगर हम ओशन फ्लोर की बात करें तो ये 5 किलोमीटर तक वहाँ पाई जाती है. द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेनली जो है दो चीज़ें पाई जाती हैं, दैट इज़ द सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल एंड द alumina. The oceanic crust mainly consists of silica. ओशन की जो क्रस्ट होती है, जो महासागरों की जो ऊपरी परत होती है, क्रस्ट जो होती है वो मेनली का सिलिका से बनी होती है. मैग्नीशियम होता है उसमें. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सिग्मा, इसीलिए उसे सिग्मा कहा जाता है. सिलिका एंड मैग्नीशियम. And figure 2.2 have to be shown here, that the layer of the oceanic crust, continental and continental crust has to be shown in this picture. So we have to be justified all the things. Just beneath the crust के just नीचे जो होता है, it is the mantle layer पाई जाती है, which extends up to depth of the 2900 किलोमीटर. और ये करीबन 2900 किलोमीटर तक नीचे की ओर पाई जाती है, below the crust के नीचे की ओर. Now turn the pages. The innermost layer is the innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of the nickel and iron and is called Nifi. निफ़ी मीन्स निकल एंड आयरन बोथ द इसमें मिक्सअप है. निकल जो है Ni लिया गया है निकल के लिए और Fe फ्यूरस फॉर द आयरन. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. Rocks and minerals we have to be talk. The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. चट्टान क्या होती है? चट्टान धरती के ऊपर जितने भी क्रस्ट पाया जाता है, अब ऊपरी लेयर पाया जाता है, वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक जब एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, दैन दे हैव टू बी कॉल्ड अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज़ एंड टेक्सचर. चट्टानें जो है वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं, अलग अलग साइज़ की हो सकती हैं, अलग अलग टेक्सचर की हो सकती हैं. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Just a minute.
There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, जब जो लावा अर्थ के अंदर से निकलता है और जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एक बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड और वो सॉलिड पत्थर के जैसा बन जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. और उस जमे हुए लावे से जो रॉक्स बनती हैं, चट्टानें बनती हैं, उन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. दो तरह की इग्नियस रॉक्स होती हैं, दैट इज इंस्ट्रक्टिव एंड एक्सट्रक्टिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज की जो वोल्केनोज ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है, लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन. वो एकदम रेड कलर का होता, पिघला हुआ होता है. मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. धरती के अंदर से वो निकलता है और बाहर सरफेस पे आता है. व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन. वो बहुत जल्दी ठंडा होता है एंड बिकम सॉलिड और सॉलिड में कन्वर्ट होता है. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इग्नियस रॉक्स. और बाहर जो वो लावा जम जाता है और उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें एक्सट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. द दक्कन प्लेटीक इज़ मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक. दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट सॉल्ट से ही रॉक से ही बना हुआ है. समटाइम्स मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. लेकिन कई बार ये जो लावा है वो बाहर नहीं निकल पाता है और ज्वालामुखी के अंदर ही जो उसका मुहान होता है, जो उसका मुंह होता है जहाँ से लावा निकल रहा होता है, उसी के अंदर ये जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स. और वहाँ पे जमने से जो चट्टानें मेंटेन होती हैं, तैयार होती हैं, उन्हें हम इंस्ट्रक्टिव कहते हैं. जो अंदर की ओर तैयार होती हैं, इंट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं. दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन्स, और धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं. गैस्ट्रल ग्रेंटल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. ग्रेंटल जो है उसका एक एग्जाम्पल है. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूजिंग टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर और स्पीसीज ऑफ ग्रेन्स आर मेड फॉर ग्रेनाइट. कि ग्रेनाइट इसकी जो तैयार की जाती है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. ग्राइंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स जो है रोल डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं. हीट ईच अदर आर सम ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स मीन्स इन्हें हम अवसाद कहते हैं, जो एक दूसरे से रगड़ के वजह से, एक दूसरे को रगड़ने की वजह से तैयार होते हैं. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा. और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये जो अवसाद होते हैं, ये पानी के थ्रू, हवा के थ्रू एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं. हवा है, पानी है, वो इनको ले जाने का काम करते हैं. दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और इस तरह के रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, मिट्टी के जो टीले होते हैं, इज़ अ मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी की वजह से बनते हैं. दीज रॉक्स मेक्स ऑल्सो कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वन लीव्ड ऑन दैम. और ये जो है कई बार प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके फॉसिल्स, उनके अवशेषों से भी तैयार होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर होते हैं. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज pressure. For example, clay changes into slates and limestone into marble. कि clay जो है वो changes होती है slate और limestone rocks के अंदर and into the marble also. रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. रॉक चट्टानें जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स. जितने भी हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाउसेस, बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होती हैं. यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स. कई स्टोन्स जो हैं हम गेम्स में भी यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें दिया है दैट हैज़ टू बी 7 स्टोन्स. पिट्ठू हम लोग खेलते हैं, हॉप स्टॉप खेलते हैं, तप्पू खेलते हैं, किट खेलते हैं, 5 स्टोन्स गिट्टी खेलते हैं. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स एज यू ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स एट्सेट्रा. जैसे गिट्टे खेलना है, पिट्ठू खेलना है. इस तरह के जो गेम्स हैं वो हम लोग जो पत्थर से खेलते हैं, हार्ड स्टोन और रॉक्स से खेलते हैं. और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस तरह के और भी गेम्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें हम हार्ड स्टोन का यूज़ करते हैं. You will be surprised to know that one type of rocks changes into another type under certain conditions in a cyclic manner. क्या आप जानते हैं कि ये जो रॉक्स होती हैं ये एक से दूसरी तरह की रॉक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती हैं एक सर्टेन कंडीशंस जब इनके ऊपर अप्लाई होती हैं.
This process of transformation of the rocks from one to another is known as the rock cycle. जब एक चट्टान जो है एक समय के बाद में, एक समय कंडीशन के बाद में दूसरे चट्टान में चेंज हो जाती है, तो उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स. ये चीज़ आप खुद पढ़ चुके हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है, इज सॉलिडिफाइड्स टू बिकम इग्नियस रॉक्स. तो ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, और दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट टू फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स. और जब हवा और पानी के थ्रू ये छोटे छोटे टुकड़े जब हैं दूसरी जगह जाते हैं, तो उनसे जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट, और जब इनके ऊपर हीट, सेडिमेंट्रीज के ऊपर हीट गिरती है, प्रेशर होता है, दे चेंज इनटू द मेटाफोरिक रॉक्स. तो ये मेटाफोरिक रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं. द मेटाफोरिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. और जब मेटाफोरिक रॉक्स को हम बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर रखते हैं, मेल्ट करते हैं फ्रॉम द मेल्टन मैग्मा, दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल. और तब ये मेल्टन मैग्मा जो है वो वापस कूल डाउन होता है एंड सॉलिडिफाइड इनटू द इग्नियस रॉक्स. और इस तरह से ये वापस इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है. इस डायग्राम में इन्होंने हमें बताया है, ये देखिए यहाँ से ये ज्वालामुखी का डायग्राम इन्होंने हमें दिया है, वोल्केनो दिया है. इसमें से आपके जो है मॉल्टन मैग्मा निकल रहा है, वो कूल डाउन हो रहा है, उससे इग्नियस रॉक्स बन रहा है. इग्नियस रॉक्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होकर सेडिमेंट्स बनाते हैं. सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स को जब वापस हीट और प्रेशर दिया जाता है, तो उससे मेटाफोरिक रॉक्स में वो कन्वर्ट होता है, और फिर वो वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स जो हैं वो अलग अलग तरह के मिनरल्स से बनते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. ये इनकी कुछ जो है सर्टेन निश्चित जो है इनकी मिनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल्स जो होते हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मनुष्य जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल. इनमें से कुछ को हम अपने फ्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने डीजल पेट्रोल में यूज़ करते हैं. For example, coal, natural gas and petroleum. These we have to be used in our day-to-day life. They are also used in the industries. इंडस्ट्रीज़ में कुछ यूज़ हम करते हैं, जैसे कि आयरन है, एलुमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, एट्सेट्रा. इन मेडिसिन्स में हम यूज़ करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी कैन बी से दैट द मिनरल्स हैज़ टू बी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर life. I hope that you have to be grab this chapter. Tomorrow we have to be discuss, or we can say that in my next video you have to be got the question answer of this chapter. Thank you so much, and you can subscribe my channel. Thank you.